Hey guys, welcome back to this channel. Today we have our JRF qualified student from the Department of English, DDU Gorakhpur University. Richa Palvi we have and Rohini Singh, Harshita Tiwari. okay, they all have qualified their JRF and this video is very helpful for you all those who are preparing for January attempt. First I will start with Richa Palvi and Hey, hello everyone, this is Richa and I just cleared my net on JRF in 2024 but before that I qualified my net 2 times net in 2023 simultaneously. That cycle I've gone and if I'm talking about my strategies, it will goes like we have to give your dedication, right? And for that reason you have to give it to your all. You can't be sit around and say like you're gonna qualify, but for the major things go through the PYQs. It's very important for all, and selected books are also that we all know as a net and JRF aspirant, we know how things goes on, right? Richa, first of all tell us that how did you choose this field, the field of literature, because it's also a confusion for the art stream student that what field they have to choose after UG. So how did you choose your subject in PG? Actually, I don't know, but I always like literature, and it's always imbibe in your childhood days, right? So you love to read and write, and of course not write in that childhood. I'm not that genius kind of, but yeah, I love to read. And then it's come out. Though I was actually a science student, and for that I want to learn something different, like foreign languages, and from that I got into the arts field, like especially English literature. So from that now my journey started till now. Stream is not restricted. If you are from physics, chemistry, math background, you can shift to literature field and you can make your journey ahead. You can build your career in the field of literature. And और JRF का भी कुछ इम्पोर्टेंस अब रोहिणी बताएंगी कि इनके माइंड में क्या है कि इनको लिटरेचर में PhD करना और JRF को क्रैक करना इनके माइंड में कब और कैसे आया? Hello guys, I am Rohini Singh. I qualified my JRF in June 2023 session. बचपन से ही मुझे नॉवेल्स एंड पोइट्रीज़ का बहुत शौक़ था. तो उसके बाद पहले तो मैंने 11th-12th PCB से किया, बायोलॉजी का भी बहुत इंटरेस्ट था मुझे, म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है. लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स से BA किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर्स ऑल्सो फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड आई क्वालिफाइड JRF. मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी यूनिट इन डिफरेंट मैनर. जितने भी यूनिट्स आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, आपको जैसे ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ना है उस तरीके से आपको अमेरिकन लिटरेचर को नहीं पढ़ना है. ब्रिटिश लिटरेचर से दे आर वेरी इन डेप्थ क्वेश्चंस विच दे आस्क. सो ब्रिटिश लिटरेचर में आपको थीम्स, सिम्बल्स, मोटिव्स, इम्पॉर्टेंट कोटेशंस, सेटिंग, बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल, सारी चीज़ें देखनी होंगी. लेकिन अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इन सब से बहुत सरफेस लेवल क्वेश्चंस आते हैं. तो उसमें आपको वर्क्स के नाम पता होने चाहिए कि किस राइटर ने कौन से वर्क्स लिखे और किस एज में लिखे, ये पता होना चाहिए आपको. और कैरेक्टर्स क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. उसके थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क्स के. उसके बाद आपको टेलीग्राम के नोट्स की भी हेल्प लेनी है, यूट्यूब लेक्चर्स की भी हेल्प लेनी है. इन यूट्यूब यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डाना मल्टीटास्कर. He teach literary theory and criticism very well, and you can also take help from Kalyani Valath ma'am lectures. एंड पेपर 1 के लिए आपको तलवीर सिंह सर की क्लासेस देखनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं पेपर 1 में. और अगर आपको उनका ना समझ में आए तो आप नवदीप मैम की क्लासेस भी देख सकते हैं. रोहिणी, जैसे एक ये क्वेश्चन रहता है लोगों का कि दे आर वेरी वीक इन मैथ्स, सो दे हैव प्रॉब्लम टू सॉल्व देयर DI सेक्शन. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट पोर्शन? एक्चुअली मैंने DI पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया था. और DI पे मैंने जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जो तलवीर सर कराते थे उनको मैं प्रैक्टिस करती थी, और उसी से मेरा 5 में 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाता था DI में. बाकी आपका जो मेजर आपका यूनिट है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है पेपर 1 में, उसी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए. बाकी 1-2 यूनिट जो छूट रहे हैं उसमें आपको उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्कोर पेपर 2 में करना है, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज ज़्यादा होता है. इसलिए आपको पेपर 1 पे ध्यान देना है, लेकिन हर एक यूनिट पे इक्वली ध्यान देना है ये ज़रूरी नहीं है.
रोहिणी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पेपर 1 में अगर 10 सेक्शन है तो अगर आप 9 या 8 भी बहुत अच्छी तरीके से थॉरली प्रिपेयर हैं उसके लिए, तो 1-2 सेक्शन में अगर थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा तो भी चल जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरे पास एक और रिसर्च स्कॉलर है, शी हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड हर JRF एंड शी विल शेयर हर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग पेपर फर्स्ट बिकॉज शी टोल्ड अस दैट शी इज़ क्वाइट वेल इन दिस फील्ड ऑफ पेपर 1. Hi everyone, my name is Harsha Tiwari. I qualified my JRF in 2022. सो फॉर पेपर 1 मेरा तो यही है कि DI छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स मेरा भी बहुत वीक था, तो वो 5 क्वेश्चन जाने से मुझे नहीं लगा कि कोई लॉस होना है। क्योंकि मेरी एक सीनियर हमेशा मुझे ये बात कहती थी कि हर्षिता, अपना पेपर होता है, अपना सब्जेक्ट पे कमांड सबका होता है, तुम्हारे साथ जो 10 लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने उनका भी वही लेवल है जो तुम्हारा है, तुम उनसे ऊपर कैसे होगे, पेपर 1 से होगे। तो वो एक स्टेटमेंट मुझे बहुत हिट करता था कि तुमको JRF पेपर 1 ही बनाता है। नेट क्वालिफाई कर लोगे अपने पेपर से, JRF के लिए तुमको अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरा यही अप्रोच रहा है कि पेपर 1 में मैं अपना टाइम ज़्यादा देती थी। और हाँ, एक चीज़ जो फ्री के नंबर होते हैं, जैसे कि मुझे लगता है अनसीन पैसेज का नंबर बिल्कुल फ्री होता है, तो अनसीन पैसेज एटलीस्ट 4 अनसीन पैसेज पर डे सॉल्व करें तो वहाँ एक भी रॉन्ग नहीं होगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने पूरे 10 क्वेश्चन सही करके उधर से आए थे। तो मेरे लिए तो पेपर 1 का है कि उसके लिए आप या तो KVS मैदान पढ़ लो। KVS मैदान बेस्ट बुक है हमारे लिए क्योंकि उसमें हमको सब मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको थ्योरीज मिल जाएंगी, क्वेश्चंस पर यूनिट 300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्या चाहिए हैं। और उसके यूट्यूब पे देखो तो 10 ऐसे प्रोफेसर्स पढ़े हुए हैं, लेक्चरर्स पढ़े हुए हैं जिनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो फॉर पेपर 1 आपको इतना ही करना है। अपने सब्जेक्ट में हम, क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना JRF का ना इंग्लिश से मास्टर्स करने का, ऐसा कुछ मेरा कुछ ऐसा अप्रोच नहीं था कि मैं मास्टर्स करूँगी इंग्लिश में, JRF क्वालिफाई कर लिया, रिसर्च स्कॉलर बन गई। जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, क्योंकि मेरा भी बायोलॉजी था और मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था बायोलॉजी में, तो मैंने कहा कि आर्ट फील्ड में ट्राई करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था। तो फिर ऐसा धीरे धीरे यहाँ प्रोफेसर से मिलना होने लगा, प्रोफेसर जानने लगे तो वो गाइड करते थे कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो धीरे धीरे इसी फील्ड में आगे बढ़ गए। गाइस, हर्षिता, रोहिणी और ऋचा तीनों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कॉमन शेयर की कि इन लोगों का स्ट्रीम जो था वो PCM या PCB रहा है। उसके बाद इन लोगों ने शिफ्ट किया लिटरेचर के फील्ड में। मुझे पता है कि वो दिन जब इन लोगों ने BA या MA किया होगा तो हार्डशिप फील किया होगा, लोगों के ताने सुनने को मिला होगा कि BA कर रहे हो आप लोग। समझ नहीं आ रहा है कि इवन PCM से आप डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाओ आर्ट्स में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज है ऑफकोर्स डिफरेंट होती है, बट स्कूल से निकल के कॉलेज वो भी डिफरेंट स्ट्रीम। समझ नहीं आती ब्रिटिश क्या चल रहा है, ये क्या है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, वट इज, हम इंग्लिश पढ़ते थे ऐसे लिखते थे, बट वट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज वी डोंट अंडरस्टैंड। बेसिकली हमने ग्रेजुएशन में इंग्लिश इसीलिए ले लिया था कि एटलीस्ट लोग कहेंगे चलो ठीक है BA कर रही है तो इंग्लिश से पढ़ रही है। और ये जो सोशल टैबू बना हुआ है कि somebody is doing BA, being boy is doing BA, और from PCM PCB doing BA, तो ये बिल्कुल ही एक तरह से ये सोशल टैबू जिसे हम लोग को क्रैक करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो यू कैन स्टडी लिटरेचर, यू कैन क्रैक योर JRF एंड यू कैन लुक फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अभी हमारे कुछ सीनियर लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक भी किया है, होपफुली ये लोग भी क्रैक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो PCM और PCB में है वो इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं, और या फिर वो उनका वो फील्ड है तो वो स्ट्रेस में रहें। अगर आपको लिटरेचर अच्छा लग रहा है तो यू कैन स्विच टू लिटरेचर एंड यू कैन परस्यू योर गोल। अच्छा, अब मैं ऋचा से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि गर्ल लोगों के लिए एक माइंड में ये रहता है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग है तो उसको लेके एक डर रहता है, तो वो कैसे टैकल किया? एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मतलब अगर पैराफ्रेजेस वगैरह देखो तो इट्स क्वाइट ईजी, बट हम जब उसको प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि अभी सबने बताया, मेरे दोनों फ्रेंड्स ने बताया तलवीर सर को फॉलो करो, KVS मैदान को फॉलो करो, और प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लॉजिकल रीजनिंग का यही था कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडियन लॉजिक में, क्योंकि इंडियन लॉजिक में हमारे पास हिंदी टर्म्स आते हैं, हमको इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेट करके पढ़ते। तो उसमें तलवीर सर ने भी, और मैंने एक और चैनल फॉलो किया था तो ज्ञान शेफाली ज्ञान अड्डा, तो उन्होंने शी टोल्ड डायरेक्टली कि एज इट इज़ वर्ड्स लो, ठीक है, हम शकुंतला पढ़ते हैं तो शकुंतला पढ़ो ना, शकुंतलम या वट एवर द इंग्लिश वर्जन दे प्रोवाइड अस, ट्राई टू लर्न द हिंदी वर्जन। तो आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाओ, ये इंडियन लॉजिक के लिए था। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो आप खुद प्रैक्टिस करते जाओ, यू विल गेट इट नो। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, नॉट लॉजिकल रीजनिंग, फॉर द इंटायर प्रिपरेशन की डोंट फोकस ऑन जस्ट
पेड कोर्सेज, राइट। पेड कोर्सेज का आप ऐसे मतलब साइको मत बना के रखो। मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि क्या कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग को लेना इंपॉर्टेंट है या सेल्फ स्टडी इज इनफ? सेल्फ स्टडी इज टू इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पेड कोर्सेज भी लेते हो या वट एवर द प्लेटफॉर्म यू फॉलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको खुद की मेहनत देनी पड़ेगी। दैट आई फॉलो दैट ग्रुप और वी जस्ट इवॉल्व दैट ग्रुप कट्स लिटरेरी पैशन, राइट। फॉलो द ऑल द फ्री वेबसाइट्स वी डू हैव, यूज द इंटरनेट प्रॉपरली, यूट्यूब प्रॉपरली, टेलीग्राम सर्च, वी डू हैव एवरीथिंग ऑन देयर, नोट्स, वीडियोज, वी ऑल एक्चुअली आई फॉलोड सम टाइम द पेड। आई जस्ट नो कि नोशन की नहीं होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन सम प्रेस्टिजियस मतलब वट वी कैन से द प्लेटफॉर्म, बट वेन यू कम टू द नो दैट दे डिडंट हैव प्रोवाइड एनी इनफ मटेरियल, हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देन आई फॉलो द फ्री कोर्सेज दैट अवेलेबल इन ऑन द एंटायर नेट, तो वो मुझे फ्री कोर्सेज बोलूँ या खुद की मेहनत बोलूँ, इट्स हेल्प मी अ लॉट। मीन्स ऋचा का कहना ये है कि कोई भी चीज़ को आप वाइजली सेलेक्ट करिए, चाहे वो आपका यूट्यूब पर हो कोई चैनल या फिर टेलीग्राम पे कोई चैनल हो, तो उसको वाइजली फॉलो करके भी आप इसको स्टडी थॉरली कर सकते हैं। अच्छा रोहिणी, अब बताएंगे कि हमें प्रिपरेशन के दौरान मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, कैसे आपने किया इस चीज़ को? मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपके अंदर जैसे डिटर्मिनेशन होना चाहिए सबसे पहले कि आपको क्वालिफाई कर लेना है, इतने टाइम में आपको कर लेना है। और अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप रूटीन बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, अपने दूसरी चीज़ों को भी साथ में लेते हुए आप मेडिटेशन भी करिए साथ में। मेडिटेशन से माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं उससे आपका जो माइंड होता है बहुत काम होता है। तो जैसा भी रोहिणी ने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेपर फर्स्ट और सेकंड में कैसे बैलेंस लेके चलना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हर्षिता, मुझे ये बताओ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पहले और क्वालिफाई करने के बाद की जो फीलिंग है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले जब आप अपने स्टडी पीरियड में होते हो, बहुत प्रेशर होता है, घर वाले पूछते रहते हैं हुआ इस बार होता है कि आप 4 बार 5 बार 6 बार दे रहे हो एग्ज़ाम और क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और ये चीज़ तो निकाल दो कि ये लास्ट ट्राई है मेरा, ये कहो कि हाँ ये लास्ट है कि इसमें निकल जाना चाहिए, ये नहीं कि बस एग्ज़ाम ही लास्ट है, क्योंकि होना है ऐसा कोई बहुत, ये नहीं कहूँगी रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन वो हमारे सारे यहाँ से है। अगर हम यहाँ से स्ट्रांग रहेंगे तो फिर किसी के ताने वाने कुछ नहीं समझ आते हैं। लेकिन हाँ, क्वालिफाई होने के बाद की जो मेरा रिज़ल्ट शाम के 7 o'clock के अराउंड आया था मुझे लग रहा है, और उसके बाद से 24 आवर मुझे झपकी तक नहीं आई। इवन मेरे लेक्चर के टाइम में मुझे नींद आती है, उस टाइम मैं 24 आवर इतनी बिजी थी सबको थैंक यू बोलने में। और कहते हैं वो फीलिंग कि आपके मदर आपके फादर के जब आँख में वो 2 आंसू खुशी के होते हैं, वो वाला जो फीलिंग मिलता है माइंड ब्लोइंग। तो मैं तो यही कहूँगी कि करना है इसके लिए कि लोग जो अभी पीछे बोल रहे हैं, सामने से जब वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको, तो वो क्या फीलिंग आती है जानना हो तो इसलिए क्वालिफाई करो। रोहिणी, आप भी कुछ अपना बता दो और मोटिवेशन एक व्यूवर्स को क्या रहेगा आपके साइड से? बिल्कुल, मेरे तो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे सब वोटिंग करने लगे थे जब मेरा क्वालिफाई हुआ था तो, और मेरे को तो बिलीव ही नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। ऋचा, अब ये थोड़ा सा डिटेल बता दो कि जो रिज़ल्ट वाला डे जो याद आ रहा हो वो कुछ शेयर करो। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम नेट निकला था तो मैं कभी रोती नहीं हूँ ऑन माई सक्सेस। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मतलब पता नहीं, आई नेवर थॉट कि रोना भी आता है, बट मैंने फर्स्ट क्वालिफाइड वाले को फाइनली समथिंग हैपेंड एंड देन आई गॉट JRF में। वो सुबह का टाइम था एक्चुअली मेरे लिए, मतलब मैंने जब रिजल्ट देखा था एंड क्वालिफाइड द JRF वो सुबह का टाइम था। तो लाइक मैं लिटरली आई एम कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन, सो क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम टू कीप माई माइंड काम। तो मैं सीधे जाके मम्मी पापा के पास गया, टेल देम एंड आई गो टू द माई टेम्पल, जो भी मेरा है अपना प्लेस, मैंने वहाँ पे अपना मतलब ग्रेटिट्यूड करा एंड आई एम हैप्पी। ये JRF के बाद जो फेलोशिप मिलेगी उसकी खुशी रहती है या वो पर्टिकुलर एग्जाम की रहती है? ये ऋचा क्लियर? एक्चुअली वो ना दोनों की रहती है। क्यों? क्योंकि यू गॉट योर फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम इज टू
important if you're watching a girls, make it clear. Financial freedom is most important for a girls and for a women, whatever. And even for boys as well. I'm not taking any sides, but yeah. एक तो था कि आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो और JRF is something in the net field, in the professor field. It's a what can we say, the tag. Right, and everyone wants to get it. Why not? And if you are preparing or you want to do a research, you need a money for that. और आपको अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए और you crack that exams, तो एग्ज़ाम की भी खुशी है and you get that money for डूइंग योर रिसर्च, तो दोनों की खुशी है गाइस. आई एम नॉट लाइक, दोनों की खुशी है. तो या फिर अब तो ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो विद इन पीजी भी आप JRF क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा फिर स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली इनरोल टू एनी यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग अ PhD एज दे ऑल आर डूइंग PhD and definitely they will rock in their field. So guys, thanks for joining me.